अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेड 12 की बुक की यूनिट 6 की पोएम वंस अपॉन अ टाइम रिटन बाय गैब्रिएल ओकारा पढ़ेंगे। बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ द पोएम और इसकी रीडिंग से पहले मुझे इसके शायर गैब्रिएल ओकारा के बारे में आपको बताने दें। ही बिलोंग्स टू नाइजीरिया, एन अफ्रीकन कंट्री एंड विच रिमेन्ड एज ब्रिटिश कॉलोनी फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। जैसे कि हमारा पाकिस्तान और इंडिया जो है वो भी ब्रिटिश कॉलोनी रह चुका है और यूरोपियन जो है अंग्रेज़ लोग हम पे हुकूमत कर चुके हैं। इसी तरह नाइजीरिया जो है वहाँ पे भी अंग्रेज़ों ने हुकूमत की। जहाँ जहाँ पे इन्होंने हुकूमत की वहाँ मसला ये हुआ कि वहाँ का उनका कल्चर जो है अडॉप्ट किया गया। उन लोगों की लैंग्वेज, लिबास, रहने सहने के तरीके जितने भी थे वो चेंज होना शुरू हुए। यही बात नाइजीरिया में शुरू हुई जिसने पोइट को बहुत मुतासिर किया और वो हमेशा अपनी पोइट्री के थ्रू उसने इस आवाज़ को उठाया। और फिर दोनों कल्चर्स यानी नाइजीरियन कल्चर और यूरोपियन कल्चर के बीच में जो क्लैश आया, सो दिस क्लैश ऑफ नाइजीरियन कल्चर विद मॉडर्न यूरोपियन कल्चर, ही रेज्ड हिज वॉइस फॉर दिस, क्योंकि उसे अफसोस था अपने कल्चर के दब जाने का, मॉडर्न यूरोपियन कल्चर को फॉलो करने का। In this poem he actually tries to capture the culture, values and voice of Nigerian people. He's also feeling guilty by adopting this modern European culture and he wishes to go back to that innocent time जो sincere time था, और वापस जब वो अपने कल्चर को फॉलो करते थे वो वही बड़ा हैप्पी टाइम था, वो वापस उस टाइम में जाना चाहता है। रीड करते हैं पोएम को। Once upon a time, son, they used to laugh with their hearts and laugh with their eyes, but now they only laugh with their teeth, while their eyes blocked cold eyes search behind my shadow. There was a time indeed they used to shake hands with their hearts, but that's gone, son. Now they shake hands without hearts, while their left hands search my empty pockets. Feel at home. Come again, they say, and when I come again and feel at home, once, twice, there will be no thrice, for then I find doors shut on me. So I have learned many things, son. I have learned to wear many faces like dresses, home face, office face, street face, host face, with all their conforming smile, like a fixed portrait smile. And I have learned too to laugh only with my teeth and shake hands without my heart. I have also learned to say goodbye when I mean good riddance, to say glad to meet you without being glad, and to say it's been nice talking to you after being bored. But believe me, son, I want to be what I used to be when I was like you. I want to unlearn all these muting things. Most of all, I want to relearn how to laugh, for my laugh in the mirror show only my teeth like a snake's bare fangs. So show me, son, how to laugh. Show me how I used to laugh and smile once upon a time when I was like you. So you can feel, students, that how sad he is by adopting this modern European culture. He wants to go back to the past time which was happier than this present time. रीड करते हैं पोएम को। Once upon a time, so he's starting like fairy tale. एक दफ़ा का जिक्र है, बिल्कुल इम्पॉसिबल सी बात है। आप मतलब अब उसके लिए ये एक फेरी टेल की तरह, जिनों बूतों परिस्तान की जो कहानियाँ हम पढ़ते थे उसी तरह से एक इम्पॉसिबल बात लग रही है कि वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है कि ऐसा होता था। दे यूज टू लाफ, दे इज़ इम्पर्सनल प्रोनाउन. We don't know whom he is addressing to. Like by they, he means Nigerian people. They once upon a time they were like lively, they were laughing with their hearts. या फिर he is referring to the European people. Laugh with their heart means दिल से हंसते थे, उनकी आंखें भी उस हंसी की तर्जुमानी करते थे और कहीं से वो स्माइल फेक नहीं लगती थी. But now they only laugh with their teeth. But now their laugh is just a show of teeth with their eyes blocked cold eyes. Blocked cold eyes mean this is a metaphor for a lack of emotion, कि कोई emotions उसमें नहीं होते, मतलब वो मुंह से तो हंस रहे हैं लेकिन आंखें उनकी तर्जुमानी नहीं कर रही, and that is why their smile is fake one.
They search behind my shadow. Search behind my shadow at my back. They are finding faults in me and they want to harm me. It means उनके इरादे ठीक नहीं होते, पीछे जो है वो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं. So the poet is actually talking about the modern diplomatic behavior of people कि जो diplomacy वो चलाते हैं, मुंह पे कुछ और पीछे कुछ. There was a time indeed they used to shake hands with their hearts. Again he is mentioning the past time and his sadness for that past and pure time. They used to shake hands with their hearts. So now at that time not only he was smiling, they were shaking hands with sincerity. और बहुत truly वो आपसे हाथ मिलाते थे सच्चे दिल से. But that's gone son. वो वक्त चला गया. अब वो वक्त मुश्किल है कि आए जब लोग सिंसियर हुआ करते थे, दिल से हंसा करते थे, दिल से आपसे मिलते थे. Now they shake hands without hurts. बग़ैर दिल के आपसे मिलते हैं. While their left hand search my empty pockets. तो इस मॉडर्न कल्चर के अडॉप्ट करने से दायां हाथ वो आपसे मिलाते हैं, जबकि आपके बाएं हाथ से वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं. दे एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम यू. लेफ्ट हैंड से आपके पॉकेट को सर्च करने का मतलब है, बाय पॉकेट दे मीन्स दे विल लुक फॉर देयर एडवांटेजेस और दे वांट टू रॉब यू. यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यूरोपियन कल्चर का जो ग्रीड है, उनका जो लालच है, वो नाइजीरियन जो जितने भी रिसोर्सेज हैं वो उनको लूटना चाहते हैं. नाइजीरियन क्योंकि बहुत गरीब मुल्क था और उनके रिसोर्सेज को भी ये लूटना चाह रहे थे, तो शायद उस तरह पोइट रेफ़र करता है कि अपरेंटली उनका जो कल्चर है दैट इज़ क्वाइट अट्रैक्टिव बट इनवर्डली एट द बैक दे वांट टू रॉब यू. कि एम्प्टी पॉकेट को भी जो जिसमें कुछ है भी नहीं और गरीब बंदे हैं उनको भी लूटना चाहते हैं. फील एट होम कम अगेन दे से. आपको बार बार इनवाइट करते हैं कि हमारे घर आएँ ताकि आपके साथ ताल्लुकात बढ़ाएं. एंड व्हेन आई कम अगेन एंड फील एट होम, और जब मैं चला जाता हूँ और एक दोस्ती मेरी बन जाती है, वंस ट्वाइस पहली बार, दूसरी बार, देयर विल बी नो ट्राइस. लेकिन तीसरी बार ऐसा नहीं होता. तीसरी बार क्या होता है कि वो ज़ाहिर है या तो घर को ताला लगा देते होंगे या फिर रिस्पॉन्स ऐसा कोल्ड देते हैं आपको कि आप समझते हैं कि जैसे उसने मेरे लिए दरवाजे बंद हो गए वहाँ के. ऑफ देम आई फाइंड डोर्स शट ऑन मी. मतलब तीसरी दफ़ा मुझे दरवाजे जो हैं उनके बंद मिलते हैं. सो आई हैव लर्नड मैनी थिंग्स सन. आई हैव लर्नड टू वेयर मैनी फेसेस. So modern European culture taught me so many tricks and so many tactics. और उसमें एक जो है that is acting, how to act in different situation with different people. I have learned to wear many faces like dresses. I can change my emotion. I can act according to the situation. से मैं अपने कपड़े चेंज करता हूँ. इसी तरह से मॉडर्न जो कल्चर है उससे मैंने बड़ी नेगेटिव चीज़ें सीखी. मुख्तलिफ सिचुएशन में मुख्तलिफ लोगों के साथ एक्टिंग करके बात कर सकता हूँ. जैसे होम फेस है मेरा, तो होम पे मेरा अलग फेस है. ऑफिस फेस मेरा अलग है. स्ट्रीट फेस मेरा अलग है. होस्ट फेस जब मेज़बान के तौर पे मैं मेहमान आते हैं उनके साथ कैसे एक्टिंग करके बात करनी है वो भी मैं जानता हूँ. विद ऑल देयर कन्फर्मिंग स्माइल्स का मतलब है एक आर्टिफिशियल मुस्कुराहट होती है मेरे चेहरे पे. जैसे हम जब तस्वीर लेते हैं तो उसके लिए हम मुस्कुराते हैं आर्टिफिशियली. तो पोइट कहता है कि इस तरह से मुख्तलिफ सिचुएशन में मैं जब इन लोगों के साथ मिलता हूँ तो इसी तरह मेरी आर्टिफिशियल हंसी एक होती है, जैसे तस्वीर वाली हंसी. मतलब दिल से नहीं हंस रहा होता हूँ, सिर्फ मेरे दांत नज़र आ रहे होते हैं और सबको एक स्माइल पास करता हूँ. एंड आई हैव लर्न टू लाफ ओनली विद माई टीथ. इस तरह मतलब ये है कि मैंने सीख लिया है कि मैंने सिर्फ दांत ही शो करने हैं, दिल से नहीं हंसना. एंड शेक हैंड्स विदाउट माई हर्ट. और इसी तरह मिलने मिलाने में इखलास से मैं काम नहीं लेता, बल्कि ऊपर ऊपर मिल लेता हूँ और फेक सी स्माइल पास करता हूँ. आई हैव ऑल्सो लर्न टू से गुड बाय. मैंने ये भी सीखा कि मैं किसी को कहूँ कि गुड बाय गुड बाय एक एक्चुअली मीन्स गॉड बी विद यू. यानी एक दुआया कलमात के साथ मैं उनको रुखसत करता हूँ कि अल्लाह आपका निगहबान हो. व्हेन आई मीन गुड रिडेंस, जबकि मेरा मतलब गुड बाय कहना नहीं होता है, बल्कि मैं कहता हूँ कि शुक्र है कि आपसे छुटकारा हमें मिल गया. रिडेंस मीन्स छुटकारा हासिल करना, गेटिंग रिड ऑफ समथिंग.
अनप्लेजेंट, ठीक है। टू से ग्लैड टू मीट यू, जब मैं कहता हूँ आपसे मिल के खुशी हुई, विदाउट बीइंग ग्लैड, जबकि मुझे खुशी नहीं हुई होती। एंड टू से इट्स बीन नाइस टॉकिंग टू यू, और जब मैं कहता हूँ आपसे बात करके खुशी हुई आफ्टर बीइंग बोर्ड, तो असल में मैं बोर हो चुका होता हूँ उनसे और मैं खुशी महसूस नहीं करता उस बंदे के साथ मिलकर या बात करके, लेकिन मुझे कहना पड़ता है, लाइक रस्मन मैं कहता हूँ। बट बिलीव मी सन, यहाँ पे पॉज जो है वो ये शो करता है कि डीप विश है उसकी, सन आई वॉन्ट टू बी वट आई यूज टू बी, जैसे पहले मैं होता था, जैसे आपकी तरह जब मैं बच्चा होता था और इनोसेंट होता था, और इस तरह की एक्टिंग मुझे नहीं आती थी, ये मुनाफकत जो है वो मुझे नहीं आती थी, मैं बिल्कुल आपकी तरह बनना चाहता हूँ। व्हेन आई वाज लाइक यू आई वांट टू अनलर्न ऑल दीज म्यूटिंग थिंग्स। म्यूटिंग मीन्स खामोश, जो नॉट एक्सप्रेस्ड थिंग। अनलर्न मीन्स जो मैंने लर्न की हैं, यानी वक्त गुजरने के साथ साथ मॉडर्न कल्चर की वजह से जो मैंने चीज़ें सीखी हैं, मैं चाहता हूँ कि उन्हें अनलर्न कर दूँ, बिल्कुल भुला दूँ, बिल्कुल ऐसा जैसे मैंने कभी सीखी ही ना हो ये चीज़, और वापस से इनोसेंट बन जाऊँ जैसे आप हैं। मोस्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू रीलर्न, रीलर्न जब आप दोबारा सीखते हैं, मतलब वो इनोसेंसी मैं दोबारा सीखना चाहता हूँ जब आपकी एज में मुझ में हुआ करती थी। हाउ टू लाफ, फॉर माई लाफ इन द मिरर शोज ओनली माई टीथ लाइक अ स्नैक्स बेयर फैंग्स। अब मैं दिल से हंसना चाहता हूँ क्योंकि मेरी हंसी, मतलब उसे अपनी ही हंसी काबिल नफ़रत लग रही है। उसे लगता है कि मैं शीशे में अगर अब मैं हंसता हूँ तो मुझे अपने दांत जो है वो सांप की तरह लगते हैं। यहाँ पे शायर ने सिमिली यूज़ की, देखें, लाइक स्नैक्स बेयर फैंग, बिल्कुल जैसे सांप के दांत जहरीले होते हैं, मुझे अपनी हंसी भी जहरीली लग रही है। यहाँ पे पोइट को अपनी हंसी से नफ़रत हो रही है या उस चीज़ से घुटन महसूस हो रही है, और तभी वो अपने बेटे को कहना चाहता है कि मुझे वापस अपने जैसा बना दें, इनोसेंट बना दें। सो शो मी सन हाउ टू लाफ, शो मी हेयर मीन्स टीच मी, मुझे वापस सिखाएं, मुझे बताएं हाउ टू लाफ, कैसे मैं हंसूं। शो मी हाउ आई यूज टू लाफ एंड स्माइल, मुझे ये सिखाएं, मुझे ये बताएं जैसे मैं पास्ट में हुआ करता था, जैसे मैं पहले दिल से हंसता था। वंस अपॉन अ टाइम आई वॉज लाइक यू, एक दफ़ा का जिक्र है जब मैं आपकी तरह हुआ करता था। सो हियर एक्चुअली द पोएट एम्फसाइजिंग टू लर्न अगेन द इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड एंड टू गो बैक टू दैट एरिया विच वॉज इनोसेंट, और जब वो इंजॉय करता था दिल से हंसी। And he's fed up with the lack of purity and sincerity of society. So this was the poem all about. अब हम इस जितनी भी figurative devices यूज़ हुए हैं वो हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद मेन थीम वगैरह डिस्कस करेंगे। थीम की तरफ आते हैं तो पोएम की जो थीम्स हैं हमारे पास, ये कल्चर चेंज भी हो सकता है, जैसे नाइजेरियन कल्चर उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई, वो चेंज हुआ और यूरोपियन कल्चर को लोगों ने अपनाया, तो ये भी एक थीम हो सकती है। इसके अलावा टू अडॉप्ट वंस ओन कल्चर, हर एक को अपना जो कल्चर है उसी को फॉलो करना चाहिए। फिर हमारे पास तीसरी थीम हो सकती है कि टू अडॉप्ट सिंसियर एंड हैप्पी वेज ऑफ लाइफ ऑफ द पास्ट, जो पास्ट में हमारे पास इंसान को प्योर होने चाहिए और सिंसियर रह के ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, और वही वेज ऑफ लाइफ गुजारनी चाहिए जो प्योर और सिंसियर होना के मुनाफकत वाली और डिप्लोमेटिक जो होती हैं। एडवाइस है, गाइडेंस है पोइट की तरफ से। फादर डजंट वांट हिज सन टू फॉलो मॉडर्न एंड इम्प्योर कल्चर, फादर्स रिग्रेट ऑन adopting fake European culture. So these are different themes of the poem. Tone की तरफ हम आते हैं. So tone is the mood of the poet and that is sad. Poet is depressed with modern artificial and dishonest ways of life. इसके अलावा nostalgic है, mean past को, अपने माजी को याद कर रहा है. Poet is looking back into the old and past was better and happier than the future. Ironic भी आप कह सकते हैं कि इसका टोन है, लाइक तंज कर रहा है वो मॉडर्न वेज ऑफ लाइफ पे जो फेक हैं, आर्टिफिशियल हैं। और बिटरनेस अपनी शो कर रहा है यूरोपियन कल्चर की तरफ, जो उसकी तलखी है, उसका गुस्सा है, उसका एंगर है, वो शो कर रहा है। और इसके अलावा वो चाहता है कि वो इनसिंसियर वेज ऑफ लाइफ जो हैं वो उसको अनलर्न कर दे, बिल्कुल भुला दे। एडवाइस भी दे रहा है अपने सन को ताकि वो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो ना करे और उसका अपना ही कल्चर फॉलो करे। स्पीकर जो इस पोएम का है वो है फादर, इट्स अ पर्सन ऑफ फादर एडवाइजिंग हिज सन नॉट टू अडॉप्ट यूरोपियन कल्चर। स्ट्रक्चर की तरफ हम आते हैं तो दिस पोएम इज़ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग, वन पर्सन स्पीक्स थ्रू आउट द पोएम। मोनो मीन्स वन एंड लॉग मीन्स वन पर्सन टॉक्स। तो फादर बोल रहा है अपने सन से और सन जो है कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ओनली वी हियर फादर थ्रू आउट द पोएम।
But this is the quality of dramatic monologue, that if even one person speaks, that one person tells about the setting, about the phenomena, about the situation, or about the problem about which he is talking. तो हमें सिर्फ फादर की गुफ्तगू से ही ये पता चल जाता है कि उसका मसला क्या है, वो कहना क्या चाह रहा है, अपने सन को एडवाइस क्या करना चाह रहा है, और वो खफा किस बात पे है. इसके अलावा स्ट्रक्चर में अगर हम देखते हैं, दिस इज फ्री वर्स पोएम, नो राइम स्कीम हैज़ बीन अडॉप्टेड, और वो इसलिए कि पोइट अपना जो मकसद है वो कन्वे करना चाहता है इन ईजी मैनर. लिटरेरी डिवाइसेस की तरफ आते हैं, या जो पोइटिक डिवाइसेस हैं, फिगरेटिव लैंग्वेज है. सबसे पहले एलिट्रेशन हम इसमें देखते हैं, टू मच रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस जो हैं वो इसमें रिपीट हुए. एलिट्रेशन की हमारे पास दो किस्में हैं, एसोनेंस एंड कॉन्सोनेंस. पहले हम एसोनेंस देखते हैं, जब वाल की रिपीटिशन होती है. तो वाल्स हमारे पास हैं, पहले ही जुमले में देखें, वंस अपॉन अ टाइम सन, ओ इज रिपीटेड, हैंस विदाउट हर्ट. कॉन्सोनेंट्स यानी एच कॉन्सोनेंट है और उसकी रिपीटिशन हुई है. सिज़ियोरा का हम इस्तेमाल देखते हैं लाइन में, फील एट होम. व्हेन देयर इज अ पाज, सिज़ियोरा कहते किस चीज़ को है, जब बोलते बोलते पोइट एक पाज लेता है, रुक जाता है थोड़ी देर के लिए, कोई अपना ग्रीफ या सैडनेस शो करने के लिए, या इमोशंस जब पीक पे पहुंच जाते हैं तो एक ब्रेक लेता है, या थकावट का इजहार करता है, सैडनेस का. सो फील एट होम, पॉज लिया. यहाँ पे हम देखते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, एंड दिस इज कॉल्ड सिज़ियोरा. इसके अलावा दे से एंड व्हेन आई कम, तो दे से के बाद भी आपको कॉमा मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड सिज़ियोरा व्हेन पोइट गिव्स अ पोएम. इंजैम्बमेंट है हमारे पास, रन ऑन लाइन्स, यानी शायर की बात ख़त्म नहीं होती बल्कि दूसरे लाइन पे फुल स्टॉप किए बगैर वो चला जाता है और दूसरे लाइन में अपनी बात को जारी रखता है. तो हम फर्स्ट टू लाइन्स जो है उसमें देखते हैं इस स्टैंजा की, एंड आई हैव लर्न टू लाफ विद ओनली माई टीथ एंड शेक हैंड्स विदाउट माई हार्ट. शायर की जो थॉट है वो दूसरी लाइन में चली गई है और वहाँ पे जाके कंप्लीट होती है, फर्स्ट लाइन में कंप्लीट नहीं हुई. And I have learned to laugh with only my teeth. So run on lines है, thought completely in lines में जाता जा रहा है, this is called enjambment. Similarly हमारे पास वो अपने स्माइल को, अपने दांतों को कंपेयर करता है, like का इस्तेमाल कर रहा है, like dresses, like fixed portrait smile, और लाइक स्नैक्स बेयर फैंग्स. इस सब में लाइक का इस्तेमाल करते हुए वो कंपेयर कर रहा है अपनी स्माइल को, एंड दिस इज द यूज ऑफ सिमिली. आइस ब्लॉक्ड कोल्ड आइज इज अ मेटाफर फॉर लेक ऑफ इमोशन और इमोशनलेस सोसाइटी के लिए. इसके अलावा इमेजरी शो करता है लाफ के साथ, पीपल लाफ विद देयर टीथ, सो दिस इज इमेजरी फॉर फेक स्माइल. एंड आइस ब्लॉक्ड कोल्ड आइज, इसमें एक इमेज दिया गया है फॉर टुवर्ड्स द अनफ्रेंडली सोसाइटी. इसके अलावा मेटाफोरिकली बहुत सारे जुमलों को इस्तेमाल किया गया है, जैसे सर्च बिहाइंड माई शेडो, यानी मेरे बैक पे अपना फ़ायदा तलाश करते हैं. मेटाफोरिकली कुछ कहना और चाह रहा है और जो लिखा है उसने वो कुछ और है, यानी हिडन मीनिंग है. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द पोएम. और अब हम इसके एक्सप्लेनेशन के और पैराफ्रेज की तरफ जाएंगे. And at the end we will discuss grammar exercise related to this poem.